नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ आपको। अपनी कॉल्स की तरफ सीधा वापस चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो सर, ब्रेक ख़त्म हो गई है, मैं वापस आ गया हूँ। हेलो। Oh, hello. हाय। Hiya. Basically, I wanted to ask, I'm a British citizen, and I've been living with my partner about a year now. We're not married. I've recently had a baby, and I want to know, to apply on behalf of our baby. Uh-huh. So how long does it take? And also, what do I need to submit? Okay. Let me just have a quick recap. You said you're a British citizen, you have a baby with your partner, you're not married. Yes. Is that correct? No, we've been living together about a year now. You've been living together about a year. And your partner, he's an overstayer? Yes, he is an overstay. He's Yes, an he doesn't have overstayer. a status Okay. at the moment. And the child, obviously, you've had the child together, and the child is how old now? It's about 1 month. Okay, very recent. All right, okay. Well, if you're asking how long it's going to take, it's going to take a while, because the first thing you need to do, what you need to understand about the law in this situation right now, this is not going to be covered under any of the immigration rules, because the immigration rules say that he should have status in the UK, and then when you get married, he should be able to apply on that basis. Now, you haven't got married, you're living together as partners. Number one, your relationship is not going to be recognized unless you have spent at least 2 years of cohabitation. So if you've been cohabiting for at least 2 years, or you get married, then that becomes sort of the same level. Now, that is not your only problem. That is the first problem you have, that you need to have your relationship recognized. The second problem you have is that because he doesn't have any status, whether or not you were married, they would have said you need to go back. Well, to him, they would say he needs to go back to his country and he needs to apply for the entry clearance from there. Now, if he says that, no, I can't apply from there, I don't want to go, I can't do this, I can't do that, but I want to have status with my wife in the UK, then they would say, well, your wife can go with you because there are no insurmountable obstacles to life continuing between the two of you in your own home country. For that, you will need to produce evidence why you cannot accompany him to his country and go and live there. Now, that could be a variety of reasons. It could be your career, could be your family, could be somebody who's dependent on you. I did a case recently where this lady was working actually for the Home Office, and her mother was completely dependent on her, and she was a British national, and the husband was an overstayer. So this was the situation where we said that it is... Actually, I am in a similar situation, exactly similar situation. Okay, okay. So there you go. So this is the sort of situation that you have to present to the Home Office. But the only problem I think you will face is that they will not recognize your relationship as such unless you've had 2 years of cohabitation. I don't know what your reasons are for not getting married at this point, but if you could get married, that would really enhance the chances of your husband's application. For the simple reason, because once you get married, your relationship in law is recognized as that of a husband and wife. And then you can say, well, now we have to fall down on EX1B of the Appendix FM and say that I have these reasons because of which I cannot leave. And these to me are insurmountable obstacles. Now, once you have got married, you put in this application, chances are that they will still refuse him the first time. But you can make an application. You could be lucky and get a right of appeal, and you can go to court, and provided you can prove to the judge that there are these obstacles that cannot be surmounted by you, then of course the judge will allow your appeal. But if that does not happen and you do not get a right of appeal, you might have to go into a judicial review application, or you might have to do further representations or something like that. So it could take some time. Typically what I've seen is, in this scenario, if we start off with the case, it usually takes about a year, year and a half, 2 years maximum for the whole thing to be resolved. If you absolutely know that there is no way that you can go back and live with him in his home country, or he can go and apply for entry clearance. All right? All the best with that, जी. अब मैं उर्दू में भी बताता चलूँ कि इनका सवाल क्या था, क्योंकि अच्छा सवाल था, मैं काफ़ी लोगों को मेरे ख्याल इसमें हेल्प हो जाएगी। सवाल ये था कि खातून बता रही हैं कि ये अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं पिछले 1 साल से। इन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक, लेकिन 1 साल से ज़्यादा इनको इकट्ठे रहते हुए हो गया है, और इनका एक बच्चा भी हो चुका है अब यहाँ पे। अब बात सारी ये आती है कि क्या ये उस बच्चे की बेस पे हस्बैंड के लिए स्टेटस अप्लाई कर सकती हैं?
क्या हस्बैंड को यहाँ स्टेटस मिल सकता है? तो मैंने ये बताया कि सबसे पहले इनकी जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि इनके रिलेशनशिप को रिकग्नाइज नहीं करेगा कानून, बिकॉज कानून ये कहता है कि या तो आपने रजिस्ट्रेशन की हो यानी यूके की शादी की हो तो उसको हम मानेंगे, या आपको इकट्ठे रहते हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका हो। अब इनको क्योंकि रहते हुए अभी सिर्फ 1 साल गुजरा है तो वो 2 साल का एविडेंस तो इनके पास मौजूद नहीं होगा। सो इनके रिलेशनशिप का सबसे पहला मसला आएगा कि होम ऑफिस को रिकग्नाइज नहीं करेगा। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जाके शादी कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये एप्लीकेशन डालते हैं तो होम ऑफिस ये कहेगा कि जी आपके पास तो स्टेटस नहीं है यहाँ पे। अब अगर मैं इनकी एप्लीकेशन करता हूँ तो मैं आर्ग्यू ये करूँगा कि इनका स्टेटस तो नहीं है लेकिन इनकी फैमिली लाइफ एग्जिस्ट करती है, इनकी प्राइवेट लाइफ भी जब जितनी भी देर से वो यहाँ पे रह रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है। अब इनका बच्चा भी हो चुका है यहाँ पे, प्लस जो बात हम जिस एक्सेप्शन के अंदर जाना चाहते हैं उसको हम EX1B कहते हैं अपेंडिक्स FM में। उसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जी इनकी वाइफ के ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से यहाँ से निकल नहीं सकती और पाकिस्तान जाके रह नहीं सकती। पाकिस्तान मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से। अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो उसमें उनको अपना सारा एविडेंस लगाना पड़ेगा। अब ये कहते हैं इनका करियर भी है, इनका जॉब भी चल रहा है यहाँ पे, इनके कोई डिपेंडेंट इनके ऊपर कोई पेरेंट्स में से भी कोई इनके ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये सारी सिचुएशन देखते हुए ये यहाँ से छोड़ के उनको वहाँ नहीं जा सकती, अब हस्बैंड को भी छोड़ना नहीं चाहती। वो जो सिचुएशन बनती है उसको हम EX1B के अंदर कवर करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जी इस सिचुएशन की बेस पे इनके हस्बैंड को यहीं से स्टेटस मिलना चाहिए। आमतौर पे जो स्पाउस वीज़ा मिलता है वो 5 साल का, 5 साल के बाद आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी केस में जब इनको स्टेटस मिलेगा तो ये 10 साल के बाद इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं होगा। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी। जनाब वालेकुम सलाम। सर जी मुझे एक सवाल पूछना है, थोड़ा सवाल लेंदी है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लूं। प्लीज शॉर्ट रखिएगा। जी 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 हाँ अली भाई, मुझे यहाँ पे यूके के अंदर तकरीबन 11 साल हो गए और मेरी फैमिली को मेरे साथ तकरीबन मोर देन 10 इयर्स हो गए। हम लोगों ने 2012 के अंदर सितंबर में FLRO जमा करवाई थी, वही 7 ईयर की पॉलिसी पे। मेरे बच्चों को यहाँ पे 10 साल से ज्यादा हो गए और मेरी बेटी को यहाँ पे 9 साल से ज्यादा हो गए, वो यहीं पे पैदा हुई थी। ओके। मुझे तकरीबन 1 साल 1.5 साल तक केस चलता रहा। तकरीबन 4-5 महीने पहले मुझे उन्होंने रिफ्यूज करके भेज दिया। हमने फौरन ही कोर्ट ऑफ अपील में अपर ट्रिब्यूनल में अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दी हेयरिंग के लिए। अभी लास्ट वीक मेरी हेयरिंग हुई थी। मेरी वकील ने तमाम मेरे बच्चों के स्कूल की रिपोर्ट, तकरीबन 150 पेपर सपोर्टिंग पेपर्स थे, तमाम नर्सरी से लेके अभी तक की 7th स्टैंडर्ड की रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स, जितनी चीजें हम जमा करवा सकते थे तमाम चीजें जमा करवाई। हियरिंग के वक्त पे जज के सामने हम पेश गए। हमारी वकील ने बहुत अच्छी तरीके से केस को आगे फाइट किया, लेकिन होम ऑफिस के बंदे ने उन्होंने कहा कि ये HC194 कोई लॉ है जिसकी वजह से हम आपको स्टेटस नहीं दे सकते। ठीक है। मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों उसने ये चीज बोली। उसके बाद जैसे उसने ये बोला कि SC194 कोई है जो दिसंबर 2012 के अंदर इंप्लीमेंट हुआ था, तो उसकी बिना पे हम आपको रिफ्यूज कर रहे हैं। उसी वक्त जज ने बोला कि इस लॉ के ऊपर मैं आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस करता हूं, क्योंकि होम ऑफिस वाले ने ये जो मुझे बताया कि SC194 इसके हिसाब से आप यहाँ पे नहीं आते। ठीक है। मुझे यहाँ 11 साल हो गए, मेरे बच्चों को यहाँ पे 10 साल हो गए, मेरी बच्ची यहाँ पैदा हुई थी 9 साल से ज्यादा की है। तमाम हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजे थे, लेकिन जज ने किसी चीज को एडमिट नहीं किया। उसने बोला नहीं मैं कोई चीज नहीं मानता और मैं आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस करता हूँ। तो ये सवाल है। और सवाल ये है सर कि मैं अब कोर्ट ऑफ अपील में जाना चाहता हूं, तो मुझे प्लीज ये अभी तक मुझे जज का डिसीजन नहीं आया क्योंकि 3-4 दिन पहले ही मेरी हियरिंग हुई है। ठीक है। तो मुझे ये प्लीज बता देंगे कि अगर मैं कोर्ट ऑफ अपील में जाता हूं तो मुझे इसके बाद कितने दिनों के अंदर मैं कोर्ट ऑफ अपील फाइल कर सकता हूं? तो प्लीज ये मुझे दोनों सवाल बता देंगे, मैं टीवी पे सुन रहा हूँ। प्लीज आप पहले एक चीज मुझे बता दीजिए जो मैं आपसे पहले कंफर्म करना चाहता हूँ। अभी आप जो जिस जज के सामने गए हैं वो तो आप फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के सामने गए हैं ना? अपर ट्रिब्यूनल के फर्स्ट ईयर, क्योंकि अपर ट्राइब्यूनल में आप तब जाते हैं जब आपकी पहले अपील एक दफा रद्द हो चुकी होती है। जी मेरी एक दफा हो गई थी, तभी मैं जुडिशियल रिव्यू का केस था मेरा। तो मुझे मेरे पास लेटर भी है इन द अपर ट्रिब्यूनल इमिग्रेशन एंड असाइलम चैम्बर, इस पे गया था मैं। नहीं, वो आपके जुडिशियल रिव्यूज भी वहां सुने जाते हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ, आपने जब एप्लीकेशन की पहले आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस ने रिफ्यूज की, उसके ऊपर आपको अपील का राइट मिला? जी अपील का राइट मिला, तो आप जुडिशियल रिव्यू में क्यों गए थे फिर? सर मेरे वही वकील ने बोला कि आप इस पे जुडिशियल रिव्यू कर दें, मैं जुडिशियल रिव्यू पे चला गया था। तो अभी मैं करना चाह रहा हूँ, एक सेकंड जरा रुक जाइए, मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ
कि अगर आपकी एप्लीकेशन को होम ऑफिस ने रिफ्यूज करके आपको अपील का राइट दिया होता तो आप फर्स्ट टियर ट्राइब्यूनल जज के सामने जाते हैं। अगर आपको अपील का राइट नहीं मिलता तब आप जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं कि हमें अपील का राइट मिलना चाहिए। सो अगर आप जुडिशियल रिव्यू में गए तो इसका मतलब आपको पहला अपील का राइट तो मिला ही नहीं। समझ आई आपको बात की? चलें अब आप गौर से सुनिए, मैं आपको बताता हूं जो मैं आपके केस को समझ सका हूं, मैं उसके मुताबिक आपको जवाब देता हूं, क्योंकि ऐसे मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए बगैर मैं आपको प्रॉपर जवाब नहीं दे सकूंगा। लेकिन आप गौर से सुनिए मेरी बात को। नंबर 1, एक चीज याद रखें, HC 194 जो आया था उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था 6 सितंबर 2012 को। 6 सितंबर 2012 को जब उसको कानून का हिस्सा बनाया गया तो उसमें यह चीज कही गई कि अब से पहले की जो एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो कभी भी की गई हों, उनको हम नए कानून के अंदर जो 9 जुलाई 2012 को नाफिज किया गया है उस कानून के तहत हम उसका फैसला करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो चीज हो रही थी, मैंने लास्ट वीक भी एक सिंह केस का जिक्र किया था, उसके अंदर यह आया है फैसला कोर्ट ऑफ अपील का कि 9 जुलाई 2012 और 6 सितंबर 2012 से दरमियान में जो फैसले किए गए हैं, अगर 9 जुलाई 2012 से पहले की एप्लीकेशन है तो उन फैसलों को जो 6 सितंबर 2012 से पहले किए जा रहे हैं पुराने कानून के अंदर देखा जाएगा, और जो एप्लीकेशंस उसके बाद की जा रही हैं 9 जुलाई 2012 के बाद, उनको नए कानून में देखा जाएगा। अब आपकी एप्लीकेशन अगर उससे पहले की गई है और 6 सितंबर से पहले उसका डिसीजन कर दिया गया तो फिर तो पुराने कानून में आएगा। लेकिन अगर 6 सितंबर 2012 के बाद उसका फैसला हो रहा है तो फिर उसको नए कानून में ही करना पड़ेगा। तो जज ने आपको इस चीज पे रिफ्यूज किया होगा। अब बात आती है कि आप कौन से कोर्ट में हैं और हुआ क्या है, क्योंकि आपने बीच में जुडिशियल रिव्यू का भी जिक्र किया, अपर ट्राइब्यूनल का जिक्र किया, आपने कोर्ट ऑफ अपील का जिक्र किया, फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल का आपने जिक्र नहीं किया। मुझे जो चीज समझ आती है वो ये होता है, आप एप्लीकेशन डालते हैं 7 साल की बेस पे कि जी मेरे बच्चों को यहाँ 7 साल हो गए, उनको यहाँ पे रहने की इजाजत मिलनी चाहिए, उसको रिफ्यूज करता है होम ऑफिस और अपील का राइट नहीं देता, तो फिर आप जाते हैं जुडिशियल रिव्यू में। जुडिशियल रिव्यू में आप जाके कहते हैं कि जी हमें स्टेटस मिलना चाहिए, हमें अपील का राइट मिलना चाहिए अगर रिफ्यूज करते हैं तो। अब वहां पे अक्सर ये होता है कि ट्रेजरी सोलिसिटर्स अपना नोटिस ऑफ डिसीजन विड्रॉ कर लेते हैं और कहते हैं कि जी हम 3 महीने में दोबारा फैसला करेंगे आपके ऊपर। अब अगर ये चीज नहीं हुई, आपको जुडिशियल रिव्यू में भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। जुडिशियल रिव्यू पहले हाई कोर्ट में होते थे, लेकिन अब इमिग्रेशन के जो जुडिशियल रिव्यूज होते हैं पिछले साल से, वो सारे अपर ट्राइब्यूनल में सुने जाते हैं। तो हो सकता है ये मामला हो। अब अपर ट्राइब्यूनल के जज ने आपको रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज करने के बाद हो सकता है आपने ओरल हियरिंग की दरखास्त की हो। वो ओरल हियरिंग आपकी आधे घंटे की होती है, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है कि जिसमें आपको कहा जाता है कि आप आके बताएं कि आपको परमिशन फॉर लीव टू वो जुडिशियल रिव्यू क्यों मिलनी चाहिए। अगर आप उस हियरिंग की बात कर रहे हैं तो अभी तक आपका अपील प्रोसेस तो चला ही नहीं है, क्योंकि अपील प्रोसेस में जाके तो आपने इस केस को जीतना है। अब अगर तो ये जुडिशियल रिव्यू की हियरिंग की आपने बात की है तो फिर तो कोर्ट ऑफ अपील में जाना, ये करना वो करना, मेरा नहीं ख्याल कि उसके भी कोई सेंस बनेगी जब तक मैं आपका एविडेंस नहीं देख लेता। अगर आपका एविडेंस इतना स्ट्रांग है जो आपने पहले से ही लगाया और उस पर आपने कहा कि जी इसको इसके ऊपर फैसला होना चाहिए, अगर तो आप सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर लड़ रहे हैं कि 6 सितंबर 2012 के बाद जो आपके केस के ऊपर फैसला किया गया और उसको उन्होंने पुराने कानून में नहीं, उसको नए कानून में फैसला किया, तो आप गलत लड़ रहे हैं। क्योंकि कानून ये कहता है, सिंह कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन है, पिछले हफ्ते आया है, वो भी साफ साफ इस चीज को कहता है कि अगर 6 सितंबर 2012 के बाद आपकी एप्लीकेशन का फैसला हो रहा है तो उसको नए कानून के अंदर, यानी 9 जुलाई 2012 के बाद के कानून के अंदर ही उसका फैसला किया जाएगा। उस पर कोर्ट ऑफ अपील में जाने का फायदा नहीं। आपको जो चीज करनी चाहिए, आपको अपने ग्राउंड चेंज कर देने चाहिए लड़ने के। क्योंकि आप ये देखें आप क्या कर रहे हैं, आप एक एनिमी टेरिटरी में जाके एक दुश्मन के जिसके खिलाफ आपने जंग करनी है, आप उसके अपने बैकयार्ड में उसके हथियार लेके उसके तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। भाई उससे हथियार चेंज करें, छीन के अपने हथियार इस्तेमाल करें, अपने एरिया में उसको लेकर आए, अपने बेसिस पे अपने रूल्स के मुताबिक लड़ाई करें, तो आपके ज्यादा चांसेस बनते हैं। अब वो किस तरह से होगा कि आप अपना कंट्रोल हासिल करें अपने केस के ऊपर। वो आपका कंट्रोल अभी क्यों नहीं है? क्योंकि आप चलते जा रहे हैं उनके ऊपर, वो थपेड़ों के ऊपर कि जी कानून में टेक्निकल ये चेंज आ गई तो टेक्निकल ये चेंज आ गई। आप उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। आप अब अगर आपको अपने आप को खड़े होकर देखें, मैं एक तरह से यूं देखता हूं कि मैं जिस तरह ऊपर एक हेलीकॉप्टर में हूं और आप नीचे हैं यहां पे, मैं आपकी पूरी सिचुएशन देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आपका केस कहां पे पहुंचा, आपकी कौन सी एप्लीकेशन डाली गई, आपको कितना टाइम गुजर गया यहां पे। उन सब चीजों को देखते हुए और कौन सा कानून आपके ऊपर एप्लीकेबल है, मैं आपको ये चीज बता सकता हूं, आपके बच्चों को यहां पे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। आप अगर एक फ्री स्टैंडिंग एप्लीकेशन अब डालें और आप उसमें कहें कि जी मैं अब, आज क्या है, 23 तारीख है, 23 फरवरी 2015 को एप्लीकेशन डाल रहा हूं लीव टू रिमेन के ऑन द बेसिस
कि मेरे बच्चे जो अभी भी 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको यहाँ पे रहते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मेरी बच्ची जो यहाँ पे पैदा हुई थी, उसकी उम्र अब 9 साल से ज़्यादा हो गई है। ये सारे फैक्टर्स देखते हुए आपने ये प्रूव करना है कि ये बच्चे अब इतने सेटल हो चुके हैं यूके में और यहाँ की लाइफ में कि उनके बेस्ट इंटरेस्ट में ये बात नहीं होगी कि उनको यहाँ से निकाल के वापस अपने मुल्क में भेजा जाए। सो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन तैयार करें, उसमें जो आपका एविडेंस होगा सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आपका एविडेंस कैसा है। आपके एविडेंस के अंदर होना चाहिए जो आपकी सोशल सर्विसेज की रिपोर्ट होनी चाहिए, जो आपके बच्चों को देख के इस चीज को क्लियर करे कि इनके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है। अब अगर एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस बच्चे को, जिसको यहाँ पे रहते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, अगर आपने यहाँ से निकाल के किसी और सिस्टम में डाल दिया तो इसकी इसकी फिजिकल इंटेग्रिटी पे फर्क पड़ेगा, इसकी जो एकेडमिक एबिलिटी है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, इसके लिंग्विस्टिक एबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, इसके सोशल स्किल्स के ऊपर फर्क पड़ेगा, इसकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर हों तो फिर कौन सा जज है जो आपको ना करेगा। ठीक, अब करना क्या है, एप्लीकेशन कीजिए। अगर आपको वो रिफ्यूज करते हैं तो आपको अपील का राइट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो आप अपील का राइट लेने के लिए जुडिशियल रिव्यू का प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें और उनको बताएं कि मेरे बच्चे अभी भी 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको यहां रहते हुए 3 साल से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है, इसलिए अगर आप उनको रिफ्यूज करते हैं तो आपको उनको अपील का राइट देना चाहिए। उस पर आपको अपील का राइट मिलता है। फिर आप फर्स्ट टियर ट्राइब्यूनल में एक इमिग्रेशन जज के सामने जाते हैं, आपकी तरफ से आपका वकील बहस करता है, आपके होम ऑफिस की तरफ से होम ऑफिस का वकील बहस करता है, आपसे एविडेंस लिया जाता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन को देखा जाता है, जज के सामने सबमिशंस की जाती हैं, फिर जज फैसला करता है कि क्या ये रीजनेबल है कि नहीं है कि आपके इन बच्चों को, जिनको 10 साल से ज्यादा हो गए यूके में रहते हुए, उनको यहां से निकाल के बाहर फेंका जाए। ये चीज आपको करनी चाहिए। मैं जो चीज समझता हूं, जो मैं आपकी बात से समझ सका हूं, क्योंकि आप वो कोर्ट ऑफ अपील को और जुडिशियल रिव्यू को बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। ये टेक्निकल चीजें हैं हुजूर, आप इन टेक्निकल चीजों के बारे में अगर नहीं जानते तो फौरन हाथ उठा लीजिए वहां से, ना इनको किसी को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अगर खुद उसकी समझ नहीं होगी तो आप किसी को समझा भी नहीं सकते। फौरन किसी वकील से मशवरा कीजिए। मेरे पास आना चाहते हैं, मैंने टाइम टेबल प्रोग्राम के शुरू में बता दिया था, अभी आखिर में फिर बता दूंगा, मेरे पास आ जाइए। इस तरह के केसेस के अंदर जिसमें जान होती है उनको पूरा पूरा फाइट करना चाहिए। अब आपने जो मुश्किल वक्त था वो तमाम गुजार लिया, आपने 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजारा जब आपके बच्चे इलीगल रहे हैं यहाँ पे। अब आपका वक्त है कि आपको स्टेटस मिलना चाहिए, कानून में आपका अब हक है कि आपको स्टेटस मिलना चाहिए। सो मेरा मशवरा यही होगा कि किसी वकील से मशवरा करें जो अपना काम और अपना कानून दोनों अच्छी तरह से बेहतर जानता हो, और उसके मुताबिक फिर फैसला करें कि आगे आपने क्या करना है। ठीक है जनाब, टेक्निकलिटीज में पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जनाब। वालेकुम सलाम। अली भाई, पहली बात थैंक यू सो मच, आप बड़ा डिटेल में आंसर करते हैं हर क्वेश्चन का, बिल्कुल टोटली सेटिस्फैक्टरी। मेरा ख्याल है कोई भी क्वेश्चन करते ना पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है आपके प्रोग्राम। कोशिश करता हूं, कोशिश। और सेकेंडली ये कि माशाल्लाह आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, आप बिल्कुल जवान है, अभी भी पहले की तरह एनर्जेटिक है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, मुझे कोई परेशानी नहीं, बताइए। और थर्डली मेरा क्वेश्चन अली भाई ये है कि ना, मैं बेसिकली 2008 में आया था एज ए स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट मेरा एक्सटेंशन एक हुई है मेरी 2011 में, फिर मेरा इस तरह PSW के लिए अप्लाई किया था मैंने 2012 में, जब वो खत्म होने था, नहीं मेरा वो था PSW ना, उन्होंने नहीं अलाउ किया था। अच्छा। और सिर्फ इसलिए डिस्क्रिप्शनरी लीव उन्होंने मुझे दी थी, लास्ट जो स्टूडेंट की एक्सटेंशन थी ना वो कोर्ट में आके हुई थी, तो उन्होंने डिस्क्रिप्शनरी लीव दी थी, तो उन्होंने कहा था डिस्क्रिप्शनरी लीव पे ना आपको PSW नहीं मिल सकता। अच्छा। ये सारा मेरा केस पुराना है। मेरी 2010 में सितंबर में मेरी शादी थी यूरोपियन से, हंगेरियन मेरी वाइफ थी। उसी दौरान ना 2010 में हंगेरियन वाइफ थी मेरी, 2010 सितंबर में शादी हुई थी। ठीक है। तो 2013 सितंबर में मेरे 3 साल कंप्लीट हो गए थे, तो ना 2013 सितंबर के बाद मैंने वो डाला था केस कि मेरे ना, मुझे उस पर रेजिडेंस परमिट नहीं मिला था मुझे उस 3 साल के दौरान, क्योंकि मैं केसों में फंसा रहा था PSW स्टूडेंट के, तो उसमें अप्लाई ही नहीं कर सका, उसका मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, अप्लाई नहीं कर सका ना जी यूरोपियन रेजिडेंस परमिट का। तो मसला ये है बेसिकली, जब मैं 3 साल कंप्लीट हो गए, मैं वकील को मिला, उन्होंने बोला कि आपके ना कंप्लीट हो गए 3 साल, अभी मेरी वाइफ ही मैं छोड़ के चली गई थी 2-2.5 साल बाद ना, 1.5-2 साल बाद। तो मैं कहता मेरी वाइफ भी साथ नहीं रहती, मुझे नहीं पता कहाँ पे ये सब कुछ। तो उन्होंने बहरहाल मेरा केस डाला था। इन शॉर्ट ये कि उन्होंने उस वक्त मुझे इमिग्रेशन वालों ने एक दिन रखा था अंदर पुलिस स्टेशन में कि मैं ओवर स्टेड हूँ, फिर अगले दिन उन्होंने छोड़ दिया था बेल पे। तो उन्होंने कहा अभी फिलहाल टाइम लेने के लिए हमें केस डालना है कि जी इसके 3 साल पूरे हो गए, इसको इंडेफिनिट दिया जाए। ठीक है। तो वो मेरा केस रिफ्यूज हो गया, फिर वो तो होना ही था रिफ्यूज। जनवरी में दोबारा केस डाला उन्होंने कि अभी इसकी हमने डिवोर्स की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है सितंबर में ही, तो
तो इसकी मिड में डिवोर्स है, तो इसको ना वो वर्क वो दिया जाए, रेजिडेंस परमिट दिया स्पाउस होने के नाते से। जी, ठीक। अब इसकी प्रोसीडिंग चल रही है, जी, तो उन्होंने वो भी रिफ्यूज कर दिया कि करना अभी ही था। इसकी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। जो उन्होंने लास्ट रिफ्यूजल दी थे वो ये दी थी कि सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है और इसका ना मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल बर्डन है ये कंट्री के ऊपर, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। जी, ये दो रीजन मेन लगाई थी। जो मेन चीज थी ना वो उन्होंने मानी थी कि 3 साल मेरे रिलेशन को पूरे हो गए, शादी चली है 3 साल। अब आप मुझे 1 साल बताइए आपका इकट्ठे रहे। सवाल क्या है। अब आप बताइए आपका सवाल क्या है। अब सवाल बेसिकली है कि मेरा अभी इन्होंने दोबारा मेरा वो रिफ्यूज किया, तो मेरा टियर 1 में ना अपील की थी मेरी, महीना पहले दिसंबर में मेरी अपील उसमें टियर 1 में उन्होंने मेरी फेवर में कर दिया। उन्होंने रीजन ये बताई थी मेरे वकील ने कि अभी ये सेल्फ सफिशिएंट है क्योंकि अब इसने जॉब भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे वर्क परमिशन मिली थी अक्टूबर में ना मैं काम कर सकता हूँ। आप टियर 1 तो उन्होंने किसकी जॉब बात भी कर रहे हैं? स्टार्ट कर टियर दिया, सेल्फ 1 सफिशिएंट भी हो गया। नहीं, उसको टियर वीजा 1 आप दिया कोर्ट की बात कर रहे हैं? जी आप टियर 1 ट्राइब्यूनल की बात कर रहे हैं? ये टियर 1 ट्रिब्यूनल में जब ये उसको दिसंबर में फर्स्ट मैं ईयर गया था ना, ट्राइब्यूनल कहते हैं भाई, उसको फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल करें। अब जब टियर 1 की बात करें तो मैं वो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम में चला गया हूँ। सॉरी वो टियर 1 की कौन सी एप्लीकेशन डाल दी आपने? वो अच्छा, उसमें उन्होंने कहा था कि इसका भाई यहाँ पे है, वो भी चलिए इसको आप कर रहे इतनी हैं। डिटेल्स में मत जाइए। आप मुझे अब ये बताइए कि आपका इस वक्त सवाल क्या है। अब इस वक्त सवाल बेसिकली ये है कि उन्होंने मेरा केस मान लिया था, उन्होंने अलाउड कर दी थी अपील मेरी फेवर में। ठीक है। होम ऑफिस दोबारा अब उसके अगेंस्ट अपर ट्रिब्यूनल में गया है। उन्होंने ये रीजन दिया है कि इसकी जून में डिवोर्स हुई फाइनल, जी, लास्ट में जून में डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट मिल गई थी ठीक। और जून से अक्टूबर तक इसने काम नहीं किया, ठीक। अनएम्प्लॉयड रहा है। तो होम ऑफिस का ये पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने ये पॉइंट दिया कि इसका क्योंकि इसने काम नहीं किया, जब इसको डिवोर्स हुई है हाँ, तो ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, एम्प्लॉयड नहीं था। ठीक, तो हमारे हिसाब से जो पहले जज ने फैसला दिया है वो कानून के मुताबिक नहीं दिया। ठीक। हालांकि मेरे जो वकील वो ये कहते हैं कि हमने बिल्कुल कानून के मुताबिक, हमारे सेल्फ सफिशिएंट का सवाल था। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ भाई, मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपके जो उन्होंने फैसला जो एप्लीकेशन की है होम ऑफिस वालों ने, उनको परमिशन मिल गई आगे कि नहीं? उन्होंने अपील की है ना उसके खिलाफ? जी, इनके खिलाफ अपील किया पर ट्रिब्यूनल में इनको परमिशन मिल गई है। मिल गई है, क्या ठीक है। आपकी हियरिंग की डेट आ गई है? हियरिंग की डेट नहीं, अभी मेरे वकील ने पेपर डाले, मैं इसलिए बेसिकली आपसे पूछ रहा हूँ कि उसमें क्या ओके, आप क्या समझते हैं। जी, चलें अब आप सिर्फ लास्ट मिनट है, मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ आपको। अब आप सिर्फ गौर से सुन लीजिए। आपने सवाल इतना लंबा कर दिया, बात थोड़ी सी थी जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बात गौर से सुनिए। आपने जो एप्लीकेशंस डाली वो सारी आपकी फजूल और बिल्कुल अननेसेसरी एप्लीकेशंस थी। आपके 3 साल कंप्लीट होते ही आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स नंबर 1। आप रिटेंशन ऑफ राइट्स की बात कर रहे हैं यूरोपियन रेगुलेशंस के अंदर। रिटेंशन ऑफ राइट्स में आपको ये दिखाना होता है कि आपको इकट्ठे रहते हुए कम से कम 1 साल गुजर गया यूके में, आपकी शादी कम से कम 3 साल कायम रही है, आप थ्रू आउट काम करते रहे हैं और आपकी वाइफ वो शादी की डेट से लेके आपकी डिवोर्स तक थ्रू आउट काम करती रही हैं, और फाइनली ये कि आपकी डिवोर्स भी हो चुकी है। जब आपकी डिवोर्स ही नहीं हुई थी तो आप रिटेंशन ऑफ राइट्स की एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। सो एनीवे, आपकी पहली 2 एप्लीकेशंस तो बिल्कुल बिला जवाज थी। उसके बाद जब आपकी डिवोर्स हो जाती है फिर आप एप्लीकेशन डालते हैं कि जी मुझे शादी को हमारे 3 साल कम से कम हो गए थे, मेरे पास तमाम प्रूफ मौजूद है कि वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी शादी की डेट से लेके डिवोर्स की डेट तक, और प्लस ये कि मैं सेल्फ सफिशिएंट रहा हूं, मैं थ्रू आउट काम करता रहा हूं एज इफ आई वाज यूरोपियन नेशनल एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स। वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपको मिलता है। अब अगर आपने वो एविडेंस सारा नहीं लगाया और कोर्ट को आपने उस पर सेटिस्फाई नहीं किया, अब फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में जज उससे सेटिस्फाई हुआ होगा तो उसने आपकी अपील की होगी। अब जो आपके ग्राउंड्स ऑफ अपील होंगे जो होम ऑफिस की तरफ से लगाए गए हैं और जो अपर ट्राइब्यूनल में हेयरिंग होगी, उसके लिए आपकी तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उस टाइम पीरियड को डिफाइन करना है कि जिस टाइम पीरियड में वो कह रहे हैं कि आपका टाइम नहीं था, जो आप काम नहीं कर रहे थे, अब वो आपने चीज़ करनी है। इससे ज़्यादा मैं आपको अभी तो नहीं बता सकता बिकॉज मुझे आपके केस को देखना भी है और आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है इतनी एप्लीकेशन करने के बाद, वो भी यूरोपियन रेगुलेशन के अंदर। सो या तो मुझे दिखा लीजिएगा या आपने जो वकील से बात की है वो आपको अगर लेके चल रहे हैं तो थ्रू आउट आप उनको फिर ट्रस्ट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि होपफुली वो जानते होंगे वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी आपका सवाल शॉर्ट कर रहा हूं लेकिन हमारा आज टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी वक्त और इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया,
कि जो टाइम टेबल हमारा है, कल इंशाल्लाह एल्फर्ड में मुलाकात होगी, वेंसडे को साउथ हॉल में मुलाकात होगी लोगों से, इस थर्सडे को बर्मिंघम में मुलाकात होगी और फ्राइडे को वापस हम इंशाल्लाह अपने फिंचली ऑफिस में मुलाकात करेंगे लोगों से। अगर आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहाँ से देख के वहाँ पे हमें ईमेल भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के ज़रूर जवाब दे दूँ आपको। अपने नेक अल्फाज में और अच्छे अल्फाज में और अच्छी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।